Good morning, students. Today we will discuss about Cauchy-Riemann equation. Okay, so notes I've already provided. So today I will give you the explanation. Okay, this is very important in complex analysis, Cauchy-Riemann equations, because using this we can see about the condition of analytic and so many other problems we can solve. So it's very important in complex analysis. Okay, so now let's see. First. We obtained a pair of equations that the first order partial differential equations of the first order partial differential equations of the components u and v of a function. Okay, here first f is equal to u plus iv. This is the function. We know complex functions a plus iv form or v u, and it is two variable x y. Okay, so v u x y plus I v x y. So it is a function, complex function, and must satisfy a point z0. Z0 is equal to x, z0 is equal to x0 y0 when the derivative of f exists. When the derivative of f exists. Okay, you see what is written here. We obtain a pair of equations. We obtain a pair of equations that the first order partial derivatives of the components function of the component function u v of function this must satisfy at this point when the differentiation of f exists. Okay, when the differentiation exists, then it must satisfy a partial differential equation of a component functions u and v. Okay, when we will do this, then you will understand properly. Okay, let's see. Okay, so here f is equal to u plus iv, that is we know. Okay, and z0 can be written as z0 as it is a function of two variables 0, x and y, so that's a z0 can be written as x plus iv form, as it is a complex number, so it can be expressed in this form. And del z, a small change. Okay, del z, that is we know already that in differentiation we use h or maybe del x. So here in complex number we use del z. Okay, del z is equal to del x plus I del y. Okay, there is small change in the variable. Okay, now w, del w is equal to, and del w is equal to what? F of z0 plus del z minus fz0. Okay, so del w जो है ये किसको पकड़ रहे हैं हम लोग? एफ z0 प्लस del z माइनस fz0. ओके, दैट मीन्स ये जो z0, ये सपोज z0 है, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट लाइक डिफरेंशिएशन, और ये है z0 प्लस del h, स्मॉल इंक्रीमेंट. दैट मीन्स ये इस पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस में है? del h, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है del h, बिकॉज del h इज़ वेरी स्मॉल. ओके, सो इसका करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो होगा क्या? ये x का वैल्यू है तो y का वैल्यू होता है fx. तो x का वैल्यू अगर हम लोग z0 पुट किया तो fx का वैल्यू कितना आएगा? f of z0. सिमिलरली दिस इट विल बी f of z0 plus del z. Okay, so now these 2 points fz0 and fz0 plus del z, इस दोनों का जो डिफरेंस है इसको पकड़ा है w. ओके, जैसे कि इसका डिफरेंस को पकड़ा था हम लोग del z. सिमिलरली इसका जो डिफरेंस है उसको हम लोग w पकड़ा. सो del w, सो del w इज इक्वल टू okay, Rahul Tati, can you hear me? Hello? Hello? Okay, let's see. Then del w is equal to f of z0 plus del z minus fz0. One second. Okay, so del w is equal to f of z0 plus del z minus fz0, as in figure it is shown.
okay. And after that this fz0 plus del z can be written as this function can be written as u plus iv. Just here given it is, you know, that fz is equal to what is given, u plus iv. so fz का वैल्यू अगर u प्लस आई वी है तो fz0 प्लस fz का वैल्यू क्या आएगा, u z0 प्लस डेल z. दैट मीन्स ये z0 प्लस डेल z को हम लोग एक्स में ब्रेक कर देने से तो ये आ जाएगा, ये z0 प्लस डेल z का जगह में आ जाएगा x0 प्लस डेल x कॉमा y0 प्लस डेल y. ओके. And plus iv. So v is what, v under bracket. Similarly this is x naught plus del x comma y naught plus del y. Okay. And then minus fz naught. So fz naught to similarly like this will come, but in place of x or y it will be naught, x naught and y naught will come. So it will become u x naught comma y naught plus minus plus, it will be minus I v x naught y naught. Okay. So like this it will come. If we will put fz0 value from this and fz0 plus del h and fz0 value similarly like this if you put, then it will come like this. now इसमें से क्या किया, ये जो रियल पार्ट है इसको सेपरेट कर दिया. ये रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं है, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों को एक साथ में लिख दिया यहाँ में. और ये दोनों जो है इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आई कॉमन ले लिया, तो आई कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिखा. ये हम लोग को मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखते हैं. ओके. देन नाउ एज्यूम दैट f dash z0 is equal to this, you know, f dash z0 is equal to limit del z tends to 0 del w by del z. बट ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट होगा बल्कि हम लोग कंसिडर कर ले कि एज्यूमिंग दैट द डेरिवेटिव दिस इज एग्जिस्ट. ओके. और ये जो फॉर्मूला है मैंने लास्ट क्लास में ये मैंने नोट में दिया हुआ था कि f dash z0 is equal to limit del z tends to 0 del w by del z. ओके. सो नाउ इसमें से ये एग्जिस्ट है बल्कि हम लोग एज्यूम किया. ठीक है. नाउ इसमें से ओके. ना फ्रॉम थ्योरम 1 सेक्शन 16. ठीक है. थ्योरम 1 सेक्शन 16 में क्या बोला है कि इस तरह के फंक्शन को ये w का वैल्यू, w क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. w जो है दिखाई दे रहा है कि ये रियल पार्ट है i प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो w डेल w जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजिंग i हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. तो इसको सेपरेट करने से इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ डेल w बाई डेल z. मतलब इसका जो जिसमें i नहीं रहेगा उस वाला पार्ट को आर ही लिख दिया और जिसमें आई रहेगा उसको लिख दिया आई एम, मतलब इमेजिनरी डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड. तो इसका जो रियल पार्ट है उसको ये यहाँ में आ जाएगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ में आ जाएगा. ठीक है. एंड लिमिट क्या है, डेल जेड टेंस टू 0 बिकॉज डेल जेड का हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स कॉमा डेल वाई, बिकॉज ये जेड में है तो इसको हम लोग एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कोऑर्डिनेट में लिखने से ये डेल एक्स डेल वाई. जनरली ये तो समझ में आ गया होगा. डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखने से डेल एक्स कॉमा डेल वाई बोल के लिखते हैं. ओके. सो लाइक दिस, इसके जगह में ये लिख दिया. नाउ ये जो है ये थ्योरम नंबर 1 से आया, बट ये नहीं लिखने से भी होगा बिकॉज हम लोग को मालूम है कि इसको हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐसे करके सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द नेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 इज़ वैलिड एज 3, मतलब जो अभी हम लोग किया था, डेल एक्स डेल वाई टेंस टू x0 टेंस टू 0,0 इन एनी मैनर दैट वी मे चूज़. तो डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, 0 0 की तरफ जाने से ये वैलिड होगा. ठीक है. नाउ इन पर्टिकुलर केस यहाँ में अगर हम लोग को चेंज किया कि डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0,0 हॉराइजेंटली. ठीक है. हॉराइजेंटली मतलब मैं डायग्राम ड्रा करके दिखा देता हूँ कि यह जाएगा x या y. ठीक है. सो हॉराइजेंटली अगर ये 0 की तरफ जाएगा, ये है 0 वाला पॉइंट, हॉराइजेंटली अगर 0 की तरफ जाएगा मतलब इस तरफ से ये 0 की तरफ जाना पड़ेगा. ठीक है. तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, y 0 होना पड़ेगा, मतलब डेल y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, हाइट जो है वो 0 होना पड़ेगा तब जाएगा. अदरवाइज y अगर है तो वर्टिकली हो जाएगा ना. तो ये हॉराइजेंटली अगर इस तरफ से जाएगा
तो ऑब्वियसली वाई का वैल्यू वाई जो है वाई ज़ीरो होना पड़ेगा, ओनली डेल एक्स रहेगा। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि इट टेंस टू 0, ऑरिजेंटली शो द पॉइंट्स डेल एक्स कॉमा ज़ीरो। डेल एक्स कॉमा ज़ीरो मतलब ये एक्स एक्सिस में है, तो इस तरीके से जाएगा ये, क्योंकि वाई ज़ीरो ले लिया यहाँ में। तो एज इंडिकेटेड, ओके फिगर मैंने शो कर दिया ऑलरेडी। एंड अगर वो तो ये डेल वाई अगर ज़ीरो हो गया, ओके, डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो, द क्वोशेंट डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बिकम्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला केस तो सेम ही रहेगा। ये कैसा है मैं एक बार दिखा देता हूँ। डेल डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग पहले से निकाला हुआ था यहाँ में, ये डेल डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ में ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू ले जाके हमें पुट कर दो। ये जो है डेल डब्ल्यू का जगह में डेल डब्ल्यू का जगह में पुट कर दिए इसको। ठीक है, खाली रियल पार्ट को यहाँ में लिखा आई और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और नीचे क्या है डेल एक्स, बट डेल जेड, सॉरी डेल जेड, और डेल जेड अभी भी मैंने हम लोग क्या लिया कि वाई को ज़ीरो ले लिया, तो इसलिए ओनली एक्स बचेगा डेल एक्स। तो इसलिए डेल जनरली डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई होता है, बट इसमें ये जो प्लस आई डेल वाई है ये नहीं रहेगा, बिकॉज वाई का वैल्यू ज़ीरो है, डेल वाई ज़ीरो लिया हम लोग। ठीक है, तो ओनली रहेगा इसमें डेल एक्स। सिमिलरली इसमें भी ये क्या आ जाएगा डेल एक्स। अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन बना है इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अभी इसमें अगर लिमिट लगा दिया, ये जो है लिमिट डेल एक्स डेल वाई ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, तो रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, तो इसको यहाँ में लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ओ ये इमेजिनरी पार्ट आई एम डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू, आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को यहाँ में लिख दिया, ये वाला चीज़ को। ठीक है, तो ना अभी देखो ये जो है यहाँ से तो ये आ गया। अभी ये चीज़ से ये जो है ये एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। रियल एनालिसिस में हम लोग को मिला हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने से ये एक्स का कोऑर्डिनेट के साथ ऐसा है एच प्लस एच हुआ था, जिसमें अब प्लस डेल एक्स भी लिखा था कुछ कुछ बुक में, कुछ कुछ बुक में यहाँ में एच लिखा था। लिमिट एच टेंस टू जीरो यू एक्स जीरो प्लस एच वाई नॉट माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ में जो प्लस हुआ था वही नीचे आया था। ठीक है, तो अगर ये एक्स के साथ प्लस होता है तो मतलब वो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई जो है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर वो वाई में वो चेंज हुआ है, अगर वाई में ये चेंज हुआ होता, एक्स अगर सेम होता तो एक्स कांस्टेंट होता और वाई में वाई का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता। ठीक है, तो ये जो है ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन हुआ है, उसमें वाई जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू यू एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजिंग लिमिट का जो फॉर्मूला है वही है। ठीक है, सिमिलरली ये भी वही है सेम, देखो इसमें खाली यू का जगह में वी है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा वी एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया कि लिमिट ऑफ दिस रियल पार्ट दिस एंड इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट यू एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट वी एक्स। ओके, सो नाउ अगेन अभी ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली हम लोग किया था। अभी अगर वर्टिकली हम लोग करेंगे, सिमिलरली ये जो अभी जो हम लोग किया था उसको उसी चीज़ को, जैसे कि हम लोग यहाँ में हॉरिजॉन्टली करने से यहाँ में एक्स को ज़ीरो वाई ज़ीरो किया था, अभी अगर वर्टिकली करेंगे जो मैंने डायग्राम में भी दिखाया था इस तरीके से, तो अगर वर्टिकली ये ज़ीरो की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली ये क्या होना पड़ेगा, डेल एक्स जो है ये ज़ीरो होना पड़ेगा और डेल वाई जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को ऐसा लिया, डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो ले लिया तो ये वर्टिकली आएगा। ठीक है, क्योंकि ओनली वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो अभी देखो ये तो अभी भी हम लोग मिला था, तो अभी इसमें एक चीज़ डिफरेंट है। देखो ये डेल जेड से डिवाइड किया ना, ऊपर वाला चीज़ तो सेम ही है, ये यू वाला पार्ट आया प्लस आई भी वाला पहले जो अभी किया था ऊपर में ना, नीचे जो डेल जेड में अभी डेल एक्स ज़ीरो है, तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला था डेल जेड का होता है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो डेल एक्स तो ज़ीरो है तो ऑब्वियसली डेल आई वाई रहेगा, तो इसमें भी डेल आई वाई रहेगा। ठीक है, अभी और एक चीज़ देख लो, इसमें जो है ये वाला आई तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो और ये वाला पार्ट प्लस में है
तो इसको हम लोग क्या किया, इस तरफ लिख दिया, क्योंकि प्लस में है तो इसलिए v को आगे लिख दिया, ठीक है। और u वाला टर्म जो है ये माइनस में होने वाला है, बिकॉज ये वाला i तो कैंसिल नहीं होगा, तो नीचे i नहीं रह सकते, दैट इज वी नो इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये i को हम लोग को एलिमिनेट करना होगा, और हाउ टू एलिमिनेट, बाय रैशनलाइजिंग। तो ऊपर नीचे अगर i मल्टीप्लाई कर दिया तो ये i और यहाँ में आई स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर में एक i आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एक आ जाएगा, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो इसके आगे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा i, ये माइनस आ गया, और ये i, और ये वाला टर्म पूरा सेम यहाँ में आ गया, और नीचे क्या रहेगा, डेल वाई, बिकॉज इसमें जो आई स्क्वायर था वो तो -1 हो गया, तो ये माइनस यहाँ में आ गया, तो ओनली डेल वाई यहाँ में है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इसका रियल पार्ट क्या आएगा, इसका रियल पार्ट में है ये वाला टर्म, तो ये आ गया। एंड ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, अभी भी मैंने बोला था कि अगर y में चेंज हुआ तो ऑब्वियसली ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, जिसमें x कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये vy हो जाएगा, कि v का डिफरेंशिएशन हुआ है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, जिसमें x कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है कि y में चेंज हुआ, ठीक है। जो रियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है उसको इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो जब भी ऐसा y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ तो मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर x कोऑर्डिनेट जैसे कि अभी लास्ट में दिखाया था मैंने x में चेंज हुआ था तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू आ जाएगा vy x0 y0, बिकॉज ये इसका ये इसको हम vy, ये जो चीज़ है ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में vy ऐसा लिखते हैं। जनरली हम लोग ऊपर डैश से डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसा करके लिखते हैं vy, x का होने से vx, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट में भी सेम, इसमें भी सेम, ये दोनों सेम ही है, खाली इसमें u की जगह में v आया तो ऑब्वियसली ये v होगा, ठीक है। लेकिन ये इसका आगे एक माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। तो अभी देखो रियल पार्ट का ये आया और इमेजिनरी पार्ट का ये आया, ठीक है। तो अभी दोनों चीज़ जो है हम लोग किया तो सेमी फंक्शन का एक हॉरिजॉन्टली किया था, एक वर्टिकली किया था, ठीक है। और ये जो पहले जो तो इट इज इक्वल टू हम लोग को एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू क्या मिल गया, अभी एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू था रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ये जो अभी हम लोग को मिला था, ये एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टली किया था तो एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू हम लोग को मिला था ये रियल पार्ट क्या मिला था ux, और इमेजिनरी पार्ट कितना मिला था vx। और अभी वर्टिकली जब किया तब हम लोग को ये रियल पार्ट मिला और ये इमेजिनरी पार्ट मिला, तो एफ डैश जेड जीरो का वैल्यू कितना मिला, vy x0 y0 माइनस आई uy x0 y0, ठीक है। तो ये तो वर्टिकल वाला है, और हॉरिजॉन्टल वाला मैं लिख लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा इजीली। तो ये एफ जेड जीरो और हॉरिजॉन्टल वाला क्या था ux, यहाँ में आया था x0 y0 प्लस आई vy x0 y0, ठीक है, ऐसा मिला था। तो अभी दोनों एफ जेड जीरो का ही तो है डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड में देखो एफ जेड जीरो, यहाँ में भी एफ जेड जीरो, दोनों तो लेफ्ट साइड में सेम है। तुम लोग को मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होना पड़ेगा, मतलब इक्वल मतलब ये इसका रियल पार्ट इक्वल होना पड़ता है एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना पड़ता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इसको 5 दे दिया और इसको सपोज 4 दे दो, तो 4 और 5, फ्रॉम 4 एंड 5 वी कैन से दैट ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vy, मतलब ux इज इक्वल टू हो जाएगा vy एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है vy इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ux इज इक्वल टू ओके, एंड ये भी x था, चलिए ये x था, ये तो विथ रिस्पेक्ट x था ना दोनों, ओके। सो ux इज इक्वल टू vy एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका vx, ये vx है, तो vx इज इक्वल टू क्या मिला इसमें इमेजिनरी पार्ट माइनस uy, तो माइनस uy, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन इसी को हम लोग बोलते हैं कोची रीमान इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, जो है ये सेम होना पड़ेगा, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि डेल u बाई डेल x, पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई, ये चीज़ को भी लिख लेना कॉपी में, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड ये इक्वेशन को लिख सकते हैं कि डेल वी बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस ऑफ
डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है सर, ये है कॉची रीमन इक्वेशन। ठीक है, ये कॉची रीमन इक्वेशन। ठीक है, तो इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना ना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को देखने से समझ में आ जाए कि ये कॉची रीमन इक्वेशन किस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो एक फंक्शन है, ये फंक्शन कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये z को हम लोग लिख सकते हैं, z इजिकल टू, सबको मालूम है कि z इजिकल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसमें z स्क्वायर दिया है तो ऑब्वियसली इसमें स्क्वायर आ जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये हमें प्लस होना चाहिए था, बट यहाँ में क्या है, i है, तो इसलिए आई स्क्वायर भी आएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए एक्स इसका माइनस वाई स्क्वायर आई 2xy। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, ये वाला जिसको हम लोग u पकड़ते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो उसको भी बोलते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy। ठीक है, तो अभी इसका जो अभी कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ux मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें फर्स्ट u का कर लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। ठीक है, और ये y तो कांस्टेंट है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, तो ux तो हो गया। अभी क्या करेंगे, ux हो गया अभी। ठीक है, uy भी कर लेते हैं। u को अगर y से करते हैं, u को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, ये x 0 हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि y विथ रिस्पेक्ट टू y करने से x 0 हो जाता है, और इसको करने से कितना आएगा, -2y, y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिमिलरली v को करने से v विथ रिस्पेक्ट टू x, v को अगर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है v को अगर x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको विथ रिस्पेक्ट x करने से y कांस्टेंट है तो 2y तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, और v विथ रिस्पेक्ट टू y करने से कितना आ जाएगा, इसमें x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x को बाहर निकाल दिया, और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होता है, 1। ठीक है, तो अभी देखो ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया v। ठीक है, तो कॉची रीमन इक्वेशन क्या था कि ux इज इक्वल टू वी वाई, ux इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, तो ux का वैल्यू देखो कितना है, 2x, और वी वाई का वैल्यू कितना है, 2x, तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ux इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, ux इज इक्वल टू वी वाई, तो ठीक है। और एक कंडीशन था क्या, ui इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। तो ui का देखो, ui इज इक्वल टू क्या है, ui इज इक्वल टू -2y, और 2y किसका वैल्यू है, 2y जो है वो vx का वैल्यू है। ठीक है, तो 2y का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है ये कॉची रीमन इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वही टू वेरीफाई कॉची रीमन इक्वेशन हम लोग इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अभी और एक चीज़ है कि इसमें देखो, इसमें से हम लोग एफ डैश एक्स का भी एफ डैश जेड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या था, एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ठीक है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स, तो यू एक्स का वैल्यू तो हम लोग को इधर से मिल गया। ठीक है, और वी एक्स का वैल्यू क्या है, वी एक्स का वैल्यू है 2y, तो ये 2y भी लिख दिया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस आई वाई को हम लोग लिख सकते हैं z, तो ये x प्लस आई को z लिख दिया, तो ये एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2z। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन भी इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना था कि ये करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल डिस्कस सम थ्योरम रिलेटेड टू दिस सीआर इक्वेशन। ओके, कॉची रीमन इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआर इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, कोई भी गेट एग्जाम दो या JM एग्जाम, किसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिमेनिंग विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।